اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا کا فضل جو کہ ہماری سوچوں سے اور ہمارے خیالوں سے بالکل باہر ہے، ہم اس کے اس بڑے فضل کی ستائش اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور میں روایتی سمجھ لیں اس کو، حسب روایت پوچھنا چاہوں گا کہ کون کون آج کا حوالہ گھر سے پڑھ کے آیا ہے. خدا کا شکر ہے کہ چند لوگ حوالہ گھر سے پڑھ کے آئے ہیں، اور باقیوں کو میں انکریج کرنا چاہوں گا کہ آپ ضرور اپنے گھر سے جب بھی آپ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آیت با آیت، ورس بائی ورس ایک خط کو ہم سیکھتے ہیں، اور سیاق و سباق میں رہ کر کے، بائبل میں رہ کر کے، ببلیکل کانٹیکسٹ کیا ہے اس میں رہ کر کے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ سب کو انکریج کروں گا، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلا حوالہ کون سا ہے. جیسے ابھی 9واں باب چل رہا ہے تو اس کے بعد 10واں باب ہوگا، اور اس کے بعد آن ورڈز ہم اسی طرح سے چلتے چلے جائیں گے. تو آئیے خداوند کے پاک کلام کی تعظیم میں ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، اور میں پڑھوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے پیچھے دہرائیں جو کچھ بھی میں پڑھوں گا، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم سب مل کر کے خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں. ہمارا آج کا حوالہ 2 کرنتھیوں اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات. خداوند کے زندہ اور بابرکت کلام میں سے 2 کرنتھیوں اس کا 9واں باب اس کی پہلی 8 آیات. میں پڑھوں گا، آپ میرے پیچھے دہرائیے گا. جو خدمت مقدسوں کے واسطے کی جاتی ہے، اس کی بابت مجھے تم کو لکھنا فضول ہے، کیونکہ میں تمہارا شوق جانتا ہوں، جس کے سبب سے مقدونیہ کے لوگوں کے آگے تم پر فخر کرتا ہوں کہ اخیا کے لوگ پچھلے سال سے تیار ہیں، اور تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو ابھارا. لیکن میں نے بھائیوں کو اس لیے بھیجا کہ ہم جو فخر اس بارے میں تم پر کرتے ہیں وہ بے اثر نہ ٹھہرے، بلکہ تم میرے کہنے کے موافق تیار رہو. ایسا نہ ہو کہ اگر مقدونیہ کے لوگ میرے ساتھ آئیں اور تم کو تیار نہ پائیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اس بھروسے کے سبب سے شرمندہ ہو. اس لیے میں نے بھائیوں سے یہ درخواست کرنا ضرور سمجھا کہ وہ پہلے سے تمہارے پاس جا کر تمہاری موعودہ بخشش کو بیشتر سے تیار کر رکھے، تاکہ وہ بخشش کی طرح تیار رہے، نہ کہ زبردستی کے طور پر. لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا. جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے. آمین. میری درخواست ہے اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. آج کا ہمارا جو مضمون ہے جس میں رہ کر کے ہم سیکھیں گے وہ ہے ہارٹ ان کرسچن گیونگ. تو ہمارا مضمون کیا ہے جی؟ ہارٹ ان کرسچن گیونگ. ہارٹ سے مراد ہے دل. کرسچن گیونگ، جب ہم مسیح ہوتے ہیں، مسیح ہوتے ہوئے جب ہم کچھ دیتے ہیں تو اس میں ہمارا دل، ہمارے جذبات کتنے زیادہ انوالو ہوتے ہیں. تو ہمارے دل کا مسیحی دینے کے اندر ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بہت مرتبہ ہماری سوچ ہوتی ہے لاچاری والی، یا ہماری سوچ ہوتی ہے، کیونکہ آج ہم جس دور میں اور جس کانٹیکسٹ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ دور جا رہا ہے جس کے اندر ہر شخص کہتا ہے
کہ سب سے زیادہ مظلوم شخص جو ہے میں ہوں اور ہر شخص کو میرے اوپر ترس کھانے کی ضرورت ہے، اور جو کہ ہمارے دل کی ناشکری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب ہم اس حوالے کے کانٹیکسٹ کو، سیاق و سباق کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ یروشلم کے اندر کافی سارے ایماندار تھے، یروشلم کے اندر کافی سارے ایماندار تھے۔ کرنتھس کی کلیسیا اخیا کے اندر تھی، اور مقدونیہ کے لوگ جو تھے وہ گریس کی نارتھ سائڈ پہ رہتے تھے، اور اخیا جو تھا وہ ساؤتھ سائڈ پہ تھا، مطلب اتنا ڈیفرنس تھا۔ تو مقدونیہ کے لوگوں نے، جس طرح کہ وہ 8ویں باب کے شروع ہی میں کہتا ہے کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا۔ مقدونیہ کے لوگ بھی تنگی کی حالت میں تھے، تکلیف کی حالت میں تھے، خود بھی غریب تھے، لیکن انہوں نے یروشلم کے ایماندار بھائیوں کو اس لائق سمجھا کہ وہ ہم سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے، اور ان کے لیے انہوں نے اپنے ہدیہ جات اور نذرانے پہلے سے کیا کیے تھے جی؟ اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے مقدس پولس رسول، کیونکہ ایک بڑا ہدیہ تمام تر کلیسیائیں تھی، تمام تر کلیسیاؤں کے اندر مقدس پولس رسول نے سرکولیٹ کیا ہوا تھا کہ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر ہدیے جمع کریں، اور ایک بڑا ہدیہ آپ لوگ جمع کریں تاکہ ہم لوگ اس کو یروشلم کے ایمانداروں کی مدد کے لیے دے سکیں۔ اور ہوتا یوں ہے کہ اخیا کے اندر کرنتھس کی کلیسیا کو بھی مقدس پولس رسول انکریج کرتا ہے کہ تم لوگ بھی اس بڑے ہدیہ کا حصہ بنو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس کے لیے تم کیا رہو؟ تیار رہو۔ تو یہ تھوڑا سا ہمارے پاس سیاق و سباق کہ یروشلم کے اندر کلیسیا موجود ہے، وہ کلیسیا ایمانداروں کی جماعت ضرورت مند ہے، اور کلیسیائیں مل کر کے ان کی مدد کے لیے ہدیہ اکٹھا کر رہی ہیں، اور مقدس پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو بھی اس بڑے ہدیہ کے لیے کہتا ہے کہ تم لوگ بھی کیا رہو جی؟ تیار رہو۔ اب جدھر مقدس پولس رسول ان لوگوں کو تیاری کے لیے کہتا ہے، تو اس سے پہلے کہ میں ان آیات کی طرف ورس بائی ورس جاؤں، میں آپ کو ایک پیٹرن، ایک نمونہ دکھانا چاہتا ہوں آپ کی کرسچن لیونگ کے لیے، کیونکہ کرسچن گیونگ کے اندر آپ کا دل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ کی جو کرسچن لیونگ ہے وہ بائبل کے مطابق اور یسوع مسیح کے نمونہ کو دیکھتے ہوئے نہیں ہوگی۔ پھر سے سنیے گا اس بات کو، کرسچن گیونگ کے اندر، مسیحی ہوتے ہوئے دے دینے کے اندر آپ کا دل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ کی زندگیاں خدا کے کلام کی تابعداری اور یسوع مسیح کے نمونہ کی پاسداری، یسوع مسیح کے نمونہ کے اوپر عمل کرنے کے اندر آپ کی زندگی اور دل نہیں ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں کو چند لمحات کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، محبت کا اندازہ جو ہے وہ قربانی سے ہوتا ہے۔ محبت کا اندازہ کس سے ہوتا ہے؟ اب محبت کا اندازہ ہم قربانی سے کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو میں پہلے پوری ایک بیس بنا کر کے آخر میں اپنے ٹیکسٹ کے اوپر جاؤں گا تاکہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ لگے۔ تو میں نے کہا کہ محبت کا اندازہ کیا ہوتا ہے جی؟ قربانی سے ہوتا ہے۔ تو ہم مقدونیہ کی کلیسیاؤں کی قربانی کو ذرا دیکھتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 8ویں باب کی پہلی 2 آیات کے اوپر ذرا آ جائیں۔ مقدونیہ کی کلیسیا کی محبت یروشلم کی کلیسیا کے ساتھ اور اس کے اندر ان کی قربانی کیسی ہے۔ مقدس پولس ان کی قربانی کو سراہتا ہوا کہتا ہے، اب اے بھائیو، ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیاؤں پر ہوا ہے، کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا ہے۔ سخت غریبی کی حالت میں بھی ہے، بڑی آزمائش میں بھی مقدونیہ کی کلیسیا ہے، لیکن یروشلم کی کلیسیا سے ان کی محبت کا اظہار کس سے ہو رہا ہے جی؟ دے دینے سے۔ ان کے پاس اپنی غریبی کی حالت میں بھی جو کچھ بھی ہے اس میں سے بھی وہ دوسری کلیسیا اور دوسرے ایماندار بھائیوں کے ساتھ محبت دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو محبت کا اندازہ قربانی سے ہوتا ہے۔ ہمیں مقدونیہ کی کلیسیا قربانی کا ایک نمونہ پیش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے
کہ اپنی غربت کے اندر، تنگی کے اندر، مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر بھی ان کا دل جو ہے وہ سخی ہے، سخاوت سے بھرا ہوا ہے کہ ان کی سخاوت حد سے زیادہ بڑھ گئی. کہ ایک حد ہوتی ہے نا ہر شخص کی، وہ کہتا ہے کہ ان کی سخاوت بے شک یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مدد نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے حد سے بڑھ کر کے سخاوت کا کیا کیا ہے؟ اظہار کیا، اور اس وقت میں کیا ہے جب ان کے لیے بھی حالات مشکل ہیں. تو یہ محبت کا اظہار ہے کہ ہم کیسے محبت کر سکتے ہیں. تو یوں ہی مقدس پولس رسول، اب 5ویں آیت پہ آ جائیں، 8ویں باب کی 5ویں آیت پہ کہتا ہے، اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا. تو وہ مقدونیہ کی کلیسیا کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا، کہ اس سے بھی بڑھ کر کے دیا. اور اس سے بڑھ کر کے انہوں نے کیوں دیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پہلے خداوند کے سپرد کیا. کس کے سپرد کیا جی؟ کرسچن لیونگ کے اندر کرسچن گیونگ کا ہونا تبھی ہوگا جب آپ کی زندگیاں خداوند کے سپرد ہوں گی. جب آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ آپ کی زندگی کا خداوند آپ کے پوزیشنز یا آپ کے ایسٹس یا جو کچھ بھی آپ کا ہے، وہ آپ کا خداوند نہیں ہے، بلکہ بائبل کا بڑا اور زندہ خدا ہی آپ کا خداوند ہے. یہ آپ کی سپردگی کا اظہار ہے کہ آپ خدا کے اوپر بھروسہ اور یقین کس طور سے کرتے ہیں. تو مقدونیہ کی کلیسیا نے خداوند کے سپرد اپنے آپ کو پہلے کیا، اور خداوند کی سپردگی میں ان کی سخاوت کیا ہو گئی؟ حد سے زیادہ بڑھ گئی. اور پھر خداوند کے حضور ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے رہنماؤں کے سپرد کیا کہ ہمیں بطور کلیسیا مل کر کے ان مسیحی بہن بھائیوں کو محبت دکھانے کی ضرورت ہے جو اس وقت میں ہم سے بھی زیادہ ضرورت میں ہے. اب اس بات کی مزید بنیاد کو مضبوط کرتے ہوئے مقدس پولس رسول ایک بڑی قربانی کو ہمارے لیے بطور نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ حقیقتاً دے دینے اور قربان کر دینے کے اوپر سیکھتے ہیں. اور مقدس پولس کس کی اگزامپل ہمارے سامنے رکھتا ہے؟ اب دوسرا کرنتھیوں 8ویں باب کی 9ویں آیت کے اوپر آ جائیں. 8ویں باب کی 9ویں آیت کے اوپر کیا لکھا ہے؟ کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ. آمین. تو وہ کہتا ہے یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو. تو بہت خوبصورت لفظ یہاں پر گریس آیا ہے، فضل آیا ہے. فضل کا مطلب ہے جب آپ ایک چیز کے حقدار نہ ہو اس وقت میں وہ چیز آپ کو مل جائے. اور مسیحی قربانی اور مسیحی دے دینے کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنا آپ قربان کر دیا، اور خدا ہماری ضرورت کو جانتا تھا. اور گیونگ ہمیشہ نیڈ کو سمجھ کے دی جاتی ہے. جو دینا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تبھی دیا جاتا ہے جب آپ کو ایک ضرورت کا پتہ ہے. اور بائبل کا خدا ہماری ضرورت سے واقف تھا کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت نجات ہے، جس کو ہم اپنے کاموں سے، جس کو ہم اپنے زور سے، جس کو ہم اپنی طاقت سے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. خدا نے ہماری اس ضرورت کو خدا جانتا تھا، اور نجات کو ہم تک پہنچانے کا پلان خدا کا ازل سے ہی تھا، اور خدا نے اپنے فضل کے وسیلہ سے وہ نجات ہم تک پہنچائی. تو جب یہاں پر لفظ آ رہا ہے کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا، تو یہاں پر خدا کی دولت مند سے کیا مراد ہے؟ یہ خدا کی خدائی صفت کے اوپر بات کر رہا ہے مقدس پولس کہ وہ خدا تھا. اس کی اٹرنیلٹی، اس کی ابدیت کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے، اس کی پری ایگزسٹنس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ خدا پہلے سے موجود تھا اور خدا خالق کل اور قادر مطلق ہے. اور جدھر وہ کہتا ہے کہ وہ تمہاری خاطر غریب بن گیا، یہ یسوع مسیح کی انکارنیشن، یسوع مسیح کے مجسم ہونے کے اوپر ظاہر کر رہا ہے اور زور دے رہا ہے کہ وہ خدا تھا،
सब चीजों के ऊपर उसका इख्तियार था, लेकिन मोहब्बत के अंदर खुदा ने क्या किया, अपना आप दे दिया और अपना आप यहां तक खाली कर दिया कि हम इंसानों के मुशाबे हो गया। और हम इंसानों के मुशाबे वो क्यों हो गया, ताकि हम जब मसीह यीशु की कुर्बानी के ऊपर ईमान लाए तो उस जलाल की बड़ी दौलत में जिंदा खुदा के साथ क्या हो जाए, शरीक हो जाए। तो खुदा सैल्वेशन की, निजात की नीड को समझता था, इसलिए खुदा ने उसके लिए अपने आप को दे दिया। तो मोहब्बत का इजहार कुर्बानी से होता है। खुदा ने मोहब्बत में अपना आप कुर्बान कर दिया। और कब कुर्बान किया, ग्रेस खुदा ने दिखाई जब हम हकदार और लायक नहीं थे। रोमियो 5:8 निकालिएगा। लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी कैसे जाहिर करता है, जब हम गुनाहगार ही थे। और उससे ऊपर वाली आयत में लिखा, शायद ही किसी नेक आदमी के लिए कोई जान तक दे देने की जरूरत करे, लेकिन हम तो गुनाहगार थे, खुदा के दुश्मन थे, लेकिन खुदा ने उस वक्त में अपनी मोहब्बत दिखाई। और खुदा जानता था हमारी ज़रूरत को, और उसने हमारी ज़रूरत के मुताबिक उम्मीद से बढ़ करके, जब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी तो खुदा हमारी उम्मीद था। और खुदा में जो उम्मीद थी उसमें शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, और उस उम्मीद में खुदा ने हमें निजात दी। अगरचे वो दौलतमंद था, वो गरीब बना। खुदा अज़ल से अबद तक खुदा है, पहले से मौजूद, सब चीज़ों से पहले, सब चीज़ों का खालिक, सब चीज़ों के ऊपर उसका इख्तियार। उसने अपने आप को हलीम किया और हमारी खातिर मुजस्सम हुआ, जिस्म लिया। और जिस्म क्यों लिया, क्योंकि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और उसके गरीब होने की वजह से हम कैसे दौलतमंद होते हैं, हम उस अब्दी जलाल की दौलत में चले जाते हैं जहाँ पर खुदा खुद मौजूद है। आमीन। खुदा की मोहब्बत को हमने उसकी कुर्बानी के अंदर देखा। मसीह ने अपना आप दे दिया गुनाहों की कुर्बानी के लिए, ताकि हम अब्दी जलाल में, जो कि हमारी हकीकी अमीरी है, उसके साथ हो। तो क्रिश्चियन गिविंग को समझने के लिए आपको जरूरत को समझना है। और जैसा कि हमने, पौलुस ने भी इसी बात को, जहां पर चंदे के ऊपर बात हो रही है, पौलुस ने इस बात को क्यों बीच में जाहिर कर दिया, क्योंकि पौलुस उनका सिखाना चाहता था मसीह यीशु की कुर्बानी से। तो खुदा हमारी निजात की जरूरत को समझता था, और खुदा जानता था कि इंसान खुद से बच नहीं सकता, और निजात के काम को मुकम्मल करने के लिए खुदा ने अपना आप दे दिया। और गुनाहगार इंसान की जो जरूरत है इस जमीन पर, वो आरामदेह जिंदगी, या बहुत बड़े बड़े घर या कोठियां या सोना चांदी या पुरसकून जिंदगी इस जमीन के ऊपर नहीं थी। इंसान की जरूरत खुदा के साथ रिकंसिलिएशन की थी, कि इंसान और खुदा का रिश्ता क्या हो जाए जी, बहाल हो जाए। तो जब हम क्रिश्चियन गिविंग के बारे में सीख रहे हैं, तो क्रिश्चियन गिविंग के अंदर हमें खुदा के दिल को देखने की जरूरत है, कि खुदा का दिल जो था वो कैसा था। तो आए अब हम यीशु मसीह के दिल को दे देने के बारे में हम देखेंगे। यीशु मसीह जो कि इस जमीन पर होते हुए जिस्म में कामिल इंसान और रूह में कामिल खुदा था, तो अब हम यीशु मसीह के दिल को दे देने के अंदर देखेंगे। तो मैं 5 हवाले हैं, 5 से 6 हवाले हैं। मैं जिस को हवाला बताऊंगा वो हवाला प्राय मेहरबानी निकाल लें। फरियाद भाई, मरकज पहला बाब 40वीं आयत से 41वीं आयत तक। मरकज पहला बाब 40वीं आयत से लेकर के 41वीं आयत। इमैनुअल भाई, मत्ती की इंजील 15वां बाब 32 आयत। फरियाद भाई और वहीद भाई, मरकज की इंजील 6वां बाब उसकी 34वीं आयत, ये निकाल लीजिए। मरकज की इंजील 6वां बाब
34वीं आयत। फिजा लूका 7 बाब 13वीं आयत से लेकर के 15वीं आयत तक। लूका 7 बाब 13वीं आयत से 15वीं आयत तक। सैरी मत्ती 14वां बाब 14वीं आयत से 21वीं आयत तक। नहमिया मत्ती उसका 20वां बाब उसकी 34वीं आयत। सो जिस किसी ने मरकस पहला बाब 40 आयत से 41 आयत तक निकाला है वो पढ़ दे। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जाए। आमीन। 41वीं आयत के अंदर आया है, उसने तरस खाकर, कोढ़ी की जरूरत क्या थी? कोढ़ से पाक हो जाना। और हमें यीशु मसीह का दिल नजर आता है कि यीशु मसीह का दिल इस जिस्म इस जमीन पर होते हुए, इंसानी जिस्म रखते हुए कैसा दिल था? तरस वाला दिल। उसने तरस खाया और इंग्लिश में लिखा है एंड ही फिल्ड विद कंपैशन। यीशु मसीह को उस पर तरस आया और उसकी जरूरत के मुताबिक मसीह यीशु ने उसको दिया। क्या दिया? मसीह ने कहा कि तू कोढ़ से क्या हो जाए? यीशु मसीह के दिल और यीशु मसीह के कंपैशन की तरफ देखे। यीशु मसीह ने तरस खाया उस पर। यीशु मसीह ने उसको कोढ़ से क्या दी? शिफा दी। अगला हवाला मत्ती 14वां बाब 14वीं आयत से 21वीं आयत तक। जिसके पास भी है वो बराए मेहरबानी पढ़ सकता है। 14वां बाब 14वीं आयत से 21वीं आयत तक। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उन बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आके कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही उनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियाँ और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने उनको कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियाँ तोड़कर शागिर्दों को दी। और शागिर्दों ने लोगों को और सब खाकर सिर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियाँ उठाई और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। आमीन। तो हमने देखा 14वीं आयत से क्या है जी? उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया। यीशु मसीह के दिल की तरफ देखिए। और यीशु मसीह ने क्या किया? उनके बीमारों को भी अच्छा किया। और मसीह ने कहा कि इनको खाने के लिए भी तुम लोग ही दोगे। और 5 रोटियां और 2 मछलियां। यीशु मसीह ने उस नीड को देखा कि ये लोग बराबर मेरा कलाम सुन रहे हैं, इनको खाने के लिए दो। यीशु मसीह के कंपैशन को देखिए, यीशु मसीह के दिल को देखिए। लूका की इंजील 7वां बाब 13वीं आयत से 15वीं आयत तक। जिसके पास है वो पढ़ सकते हैं। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजों को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए। और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उसे कहा, मत रो। यीशु मसीह उस औरत को जिसका बेटा मर गया है, यीशु मसीह को उसकी तरफ देख करके क्या आया? तरस आया। और मसीह ने कहा, मत रो। और उसी घड़ी उस जनाजे को यीशु मसीह ने छुआ और वह बच्चा दोबारा से जिंदा हो गया और उसको उसकी माँ के हवाले कर दिया। मसीह यीशु को क्या आया? तरस आया। मसीह यीशु के दिल की तरफ देखिए। मरकस की इंजील 6वां बाब उसकी 34वीं आयत। और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद थे जिनका चरवाहा ना हो। और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। तालीमी लिहाज से भी लोगों के ऊपर यीशु मसीह को क्या आया? तरस आया। यीशु मसीह को देखिए। और जब यीशु मसीह को तरस आया तो यीशु मसीह उनको बहुत सी बातों की क्या देने लग गया? तालीम। यीशु मसीह उस जरूरत को समझता था कि इस वक्त में इन लोगों को क्या जरूरत है और उस जरूरत के मुताबिक यीशु मसीह उनको दे रहा था।
जिसको कोर्ट से रिहाई की जरूरत थी मसीह को तरस आया, उसने कोर्ट से रिहाई दी। जिसको बेटे की जरूरत थी मसीह यीशु को तरस आया, मसीह यीशु ने उसके बेटे को जिंदा किया। जो तालीम के लिहाज से परागंदा थे भेड़ों की माने, मसीह यीशु को तरस आया और उसने उनको बहुत सी बातों की तालीम देना शुरू की। यीशु मसीह के दिल की तरफ देखिए। मत्ती की इंजील 15वां बाब 32 आयत। वो यीशु ने अपने शिष्यों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं। मुझे इस भीड़ पर क्या आता है? क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे, और फिर यीशु मसीह ने उनको खाने के लिए दिया। 3 दिन से बराबर यीशु के साथ। देखिए यीशु के दिल की तरफ देखिए, यीशु मसीह जरूरत को समझता था। और यहां पर जो हम देख रहे हैं, ये इंसान यीशु मसीह के कामिल इंसान होते हुए उसके दिल को देख रहे हैं, और उसी के साथ साथ कामिल खुदा होते हुए उसकी उस कुदरत को हम साथ साथ देख रहे हैं। तो इन दोनों चीजों को आप देखें, कामिल इंसान होते हुए यीशु मसीह के दिल को हम देख रहे हैं कि इंसान को देखते हुए इंसान की जरूरत के ऊपर यीशु मसीह को क्या आता है? तरस आता है। और कामिल खुदा होते हुए यीशु मसीह अपनी खुदाई कुदरत के वसीला से उनको क्या करता है? देता है। कैसी खूबसूरत और बड़ी एग्जाम्पल देने के अंदर कामिल इंसान होते हुए यीशु मसीह ने तरस खाने के अंदर हमारे लिए रख छोड़ी है। मत्ती की इंजील 20वां बाब 34वीं आयत। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो गए। यीशु मसीह को तरस आया और वो फौरन बीना हो गए, वो देखने लग गए। Look at the heart of Jesus and compassion over the people in need. वो लोग जो जरूरत में हैं, उन लोगों के लिए यीशु मसीह के दिल को देखिए, यीशु मसीह के तरस को देखिए। वो लोग जो किस में हैं जी? जरूरत में हैं। और जहां पर जो मिसालें हमने देखी है, ये यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी की मिसालें हैं। और जहां पर यीशु बतौर कामिल इंसान और कामिल खुदा होते हुए अपनी कुदरत दिखाता हुआ हमें क्या कर रहे हैं? नजर आ रहे हैं। तो एक बात याद रखिए, क्रिश्चियन गिविंग इज क्राइस्ट लाइक गिविंग। मसीह यीशु में देना जो है वो उस तरीके से देना है जिस तरीके से यीशु मसीह ने दिया। इन गिविंग यू नीड टू सी क्राइस्ट earthly life as an example, his heart filled with compassion। आपको देने के अंदर यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी को बड़े गौर से और कीमती देखने की जरूरत है, और यीशु मसीह की जिंदगी को बतौर मिसाल रखते हुए सामने रखने की जरूरत है कि यीशु मसीह का दिल जब किसी को जरूरत में देखता था तो कैसे तरस से भर जाता था। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि हर कोई अपने दिल के अंदर देखे, क्या आपका दिल उस तरस से भर जाता है जब आप किसी को जरूरत में देखते हैं? यीशु मसीह जो कि मेरा और आपका खुदावंद है, और बेशक मैं और आप यीशु मसीह की तरह खुदा नहीं है, हम भी यीशु मसीह की मखलूक हैं। खुदा बाप बेटा रूहुल कुद्स के वसीला से हम इस जमीन पर आए, हम बनाए गए, हम पैदा हुए, खुदा की सॉवरेनिटी में जिंदगी गुजारे हैं। शायद हम लोग यीशु मसीह की खुदाई जात के मुताबिक लोगों की, फर्ज करें कोई बीमारी है, उसकी जरूरत को बिल्कुल उसी वक्त उसकी बीमारी को ठीक ना कर सके, लेकिन यीशु मसीह क्या एग्जाम्पल दे रहा है? तरस से दिल का भर जाना। और जो कुछ आपके पास है मसीह, अगर तो वो आपका खुदावंद है, उसको सामने रखते हुए दे देना। क्या आपका दिल उस तरस से भर जाता है जब आप किसी को जरूरत में देखते हैं? यीशु मसीह की कैसी टीचिंग्स क्या थी? यीशु मसीह की टीचिंग्स थी, अपने पड़ोसी से अपनी माने मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से अपनी माने मोहब्बत रख। अब यही बात चल रही थी, तो यीशु मसीह से लोगों ने दरियाफ्त करना चाहा कि फिर पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? तो यीशु मसीह उसको एक तमसील के जरिए से समझाते हैं कि पड़ोसी कौन है। तो वो तमसील निकालिएगा, लूका 10वां बाब 25वीं आयत से लेकर के 37वीं आयत तक। हवाले ज्यादा है तो बिल्कुल आपने हिम्मत नहीं हारनी है। लूका 10वां बाब 25वीं आयत से 37वीं आयत तक।
जी निकाल लिए, मैं पढ़ूंगा। लूका 10वां बाब 25वीं आयत से 37वीं आयत तक लिखा है, और देखो एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। शरा का आलम उठा और यीशु मसीह की आजमाइश कर रहे कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा कि तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने तई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? अब यहां पर वो अपने तई यीशु मसीह को नीचा करने के लिए और अपने तई कि मैं तो ये सारा काम करता हूं, तो यीशु को कहता है फिर मेरा पड़ोसी कौन है? अब यीशु मसीह पड़ोसी उसको बताने लगा कि पड़ोसी कौन है। जरा गौर कीजिएगा। यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया, उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया। क्या लिखा है? लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर भटियारे को दिए और कहा इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था तेरी दानिस्त में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। ये है यीशु मसीह की टीचिंग्स। पहले हमने यीशु मसीह को बतौर एग्जाम्पल देखा, अब हम यीशु मसीह की तालीम को देख रहे हैं। तरस खाने और रहम दिली दिखाने के बारे में यीशु मसीह हमें क्या टीचिंग दे रहा है। क्या टीचिंग है यीशु मसीह की? वो कहता है, अब आप उस शख्स को देखें, उस सामरी शख्स की। उसने ना सिर्फ क्या किया, सबसे पहले उसको उस पर तरस आया। तरस आने के बाद जो कुछ वो कर सकता था वो उसने किया। वो क्या किया? उसके जख्मों को तेल लगाया, उसके जख्मों को बांधा, अपने ही जानवर पर उसे सवार किया, सराय में छोड़कर आया और उसकी खबरगिरी भी की। ऐ नहीं कि उन्होंने पा के तो छड़ आया, खबरगिरी की। अगले दिन आकर के 2 दिनार पैसे भी दे करके गया, इसकी देखभाल कर और ऐसे देखभाल कर कि अगर और भी कुछ इसका आता हुआ तो मुझे बताना, मैं वो भी तुझे दूंगा। और क्या लिखा है? इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था तेरी दानिस्त में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा वो जिसने उस पर रहम किया। मसीह ने उसको कहा क्या कहा? तू भी ऐसा ही करना। तरस दिखाना, रहम करना, ये आपके और मेरे खुदावंद की तालीम है, आपके और मेरे खुदावंद की टीचिंग है, जो आज के ईमानदारों के लिए भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी कि उस वक्त के अंदर थी। खुदा का शुक्र है कि उसने अपने आप को रास्तबाज ठहराने और आजमाइश, यीशु मसीह की आजमाइश करने की कोशिश की। खुदा का शुक्र हो कि हमारे सामने जिंदगी गुजारने के लिए मसीह यीशु ने तालीमी लिहाज से भी कुछ बातें छोड़ दी ताकि हम उसके ऊपर अमल कर सकें। मसीह के मुंह से निकले हुए अल्फाज और मसीह के मुंह से निकली हुई बातें वो करना जरूरी है। ऐ ईमानदारों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, तरस खाना और तरस के अंदर रहम दिखाना और ऐसा ही करना हमारा खुदावंद हमसे यही चाहता है। मसीह ने तरस खाया, तरस खाने में मसीह ने दे करके भी दिखाया, करके भी दिखाया, और वही डिमांड मसीह ईमानदारों से भी करता है कि हम भी तरस दिखाएं और हम भी जो कुछ हम कर सकते हैं वो हम जरूर करें। ये क्रिश्चियन गिविंग है और क्रिश्चियन गिविंग में आपके दिल का होना बहुत जरूरी है। अब क्रिश्चियन टीचिंग्स के अंदर आपके ईमान का सबूत क्या है?
मसीही तालीम के अंदर आपके ईमान का सबूत क्या है? तो मेरे साथ निकालिए याकूब उसका दूसरा बाब उसकी 14वीं आयत से 17वीं आयत। याकूब का खत। अब क्रिश्चियन मसीही तालीमात के अंदर आपके ईमान का सबूत क्या है? तो आए हम देखते हैं याकूब उसका दूसरा बाब 14वीं आयत से 17वीं आयत तक। दूसरा बाब 14वीं आयत से 17वीं आयत लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार है वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ ईमान ना हो तो अपनी जात से। अब हमारे ईमान का सबूत हमारी तब्दील शुदा जिंदगी है, और तब्दील शुदा जिंदगी के अंदर हम क्या करते हैं? उधर क्या लिखा है? कोई तेरे पास आए और कहता है कि मेरे पास कपड़ा नहीं है, और तू उसे कहे जा गरम और सेर है लेकिन जो तन के लिए दरकार है वो उसको ना दे, तो क्या ऐसी हालत को देख करके कोई तुझे ईमानदार कहेगा? अगर कोई तेरे पास खाने के लिए आए और तुझे कहे कि मुझे खाने की जरूरत है, तुझे कहे जा सेर रह, क्या इस तरह तू उसको, लेकिन जो खाने के लिए दरकार है वो तुझे ना दे, इसको देख करके कोई तुझे कहेगा कि तू ईमानदार है? नहीं। मसीह यीशु ने क्या कहा? मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को, मैं प्यासा था तुमने मुझे पीने को, मेरे पास कपड़ा नहीं था तुमने मुझे पहनने को कपड़ा न दिया। और उस वक्त में आखिरी अदालत के दिन लोग यीशु मसीह से कह रहे होंगे, यीशु मसीह हमने कब तेरे साथ ऐसा सलूक किया? यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? तुम में से जिसने अपने से छोटों के साथ ये सलूक किया उसने मेरे साथ ही वो सलूक किया। आप लोग अपने दिल की जेनरोसिटी की तरफ, सखावत की तरफ देखें कि वो कितना ज्यादा शेक हुई है खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को देख करके। कितना ज्यादा आपका दिल हिला है जब आप खुदा की बातों को सुनते और देखते हैं। और अपनी जिंदगी के अंदर देखें कि आपका दिल किस जगह के ऊपर है। क्या आप क्राइस्ट की एग्जाम्पल और क्राइस्ट की टीचिंग्स को सामने रखते हुए कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आए मजीद क्राइस्ट की टीचिंग के ऊपर हम एक और हवाला पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील 5वां बाब 40वीं आयत से 42वीं आयत। मत्ती की इंजील 5वां बाब 40वीं आयत से 42वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा, गौर कीजिएगा क्या लिखा हुआ है। तुम सुन चुके हो 40वीं आयत से 42वीं आयत तक, और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे, और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह। अपने रवैयों की तरफ देखें। ये यीशु मसीह अपने सरमन के अंदर ये बात कर रहा था, और ये प्रैक्टिकल सरमन था जो यीशु मसीह ने दिया। कोई तुझसे तेरा कुर्ता मांगे तो उसको अपना चोगा भी दे दे। कोई तुझसे कहे कि मेरे साथ 1 कोस चल, तो 1 कोस के बजाय 2 कोस चल। कोई तुझसे उधार मांगे तो इस गर्ज से उससे मुंह ना मोड़ ले कि तू ये तो मुझसे पैसे मांग रहा है। बात ये है भाइयों, हमारा दिल सख्त हो जाता है, और बहुत मर्तबा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अपने सखावत के अंदर इतने ही सखी हो जाएं कि कोई भी आकर के आपका फ़ायदा उठा करके चला जाए। लेकिन एक बात ये भी याद रखिए, यीशु मसीह की टीचिंग्स में किसी जगह पर हमें ये नहीं मिलता जहाँ यीशु मसीह ने ये कहा हो कि तुम लोग किसी को अपना फ़ायदा उठाने से रोकना। ये बात समझने की, हमें ऐसा कुछ मिलता नहीं है। लेकिन मसीह ने ये भी कहा है, कबूतर की मानिंद भोले और सांप की मानिंद होशियार भी होना है। तो हमें कॉन्टेक्स्ट को और चीज़ों को समझने की भी ज़रूरत है। कुछ लोग हकीकत तरफ हम इसके अंदर थोड़ी सी एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं भी होती, लेकिन उनको वो, कुछ लोग कंजूस होते हैं, वो अपना पैसा लगाना नहीं चाहते, लोगों से उधार पे उधार उठाते जाते हैं। कुछ लोग बेवकूफ़ी के अंदर होते हैं, वो लोग जानबूझ के पैसे को ज़ाया करते हैं और उधार पे उधार उठाते चले जाते हैं।
तो डिसर्नमेंट भी जरूरी है, डिसर्नमेंट भी जरूरी है। लेकिन इतने ओवर डिसर्निंग ना हो जाइएगा कि वो आपके दिल के अंदर से तरस को मार दे। जरूर जांच पड़ताल करें, देखें, लेकिन आपके दिल जो कि तरस से भरा हुआ है मेरे भाइयों, वो आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। बहुत मर्तबा लोगों के दिलों की वो आग जो है, तरस खाना, बुझ जाता है। और आज का जो एक सेल्फिश कल्चर हमारे इर्द गिर्द जो गिर्द है, हर कोई ये सोचता है कि हर किसी, मैं ही वो शख्स हूं जिसके ऊपर तरस खाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और जब हम ये कहते हैं कि मैं ही वो शख्स हूं जिस पे सबसे ज्यादा तरस खाने की जरूरत है, तो हम खुदा की बरकतों के इनकारी और हम खुदा की नाशुक्री करते हैं। वो वक्त कब हमारी जिंदगी के अंदर आया कि जो कुछ हमारे पास है उसमें हम कनात पसंदी के साथ शुक्र करके खुदा को करें कि ऐ खुदा तेरा शुक्र है। अगर वो हमें खाने को रोटी देता है तो कितनी ज्यादा हमारी जिंदगियों के अंदर शुक्रगुजारी होती है। सो क्रिश्चियन गिविंग के अंदर भाइयों दिल का होना बहुत जरूरी है। और आपका दिल क्रिश्चियन गिविंग के अंदर तभी होगा जब आपकी लिविंग क्राइस्ट लाइक होगी, जब आप यीशु मसीह की तरह जिंदगी गुजारेंगे। तो यीशु मसीह की तरह जिंदगी गुजारने में यीशु मसीह तरस भी खाता था। एक गुनाह आपके सामने रखने लगा हूं। याकूब 14वां बाब 17वीं आयत में क्या लिखा है? याकूब का खत उसका 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत। याकूब ओ चौथा बाब, याकूब उसका चौथा बाब उसकी 17वीं आयत। याकूब चौथा बाब 17वीं आयत लिखा है, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह। अब जब हमारे पास क्रिश्चियन गिविंग की एक बुनियाद बन चुकी है कि क्रिश्चियन गिविंग के अंदर हमारा नमूना जो है वो हमारा जिंदा खुदावंद है, आओ यीशु मसीह की जैसी जिंदगी गुजारें। आओ यीशु मसीह जैसे तरस खाता था हम भी उन पर तरस खाएं जो हकीकतन जरूरतमंद है। यीशु मसीह ने जहां पर एक तरफ रोटियां और मछलियां खिलाई, वहां पर यीशु मसीह ने एक तरफ यह भी कहा था, तुम खुदा के कलाम की बातें सुनने के लिए मेरे पीछे नहीं आते हो, बल्कि तुम इसलिए आते हो कि रोटियां खाओ और सेर हो जाओ। यीशु मसीह हमें डिसर्न करता हुआ भी नजर आ रहा है। हर दफा यीशु मसीह ने रोटी नहीं खिला दी, या हर दफा यीशु मसीह ने पार्टी नहीं चला दी, क्या है जी आज मछली और रोटी होगी। ये समझने की जरूरत है। जहां पर तालीम देने की जरूरत को यीशु मसीह ने समझा, वहां पर यीशु ने तालीम दी। जहां पर मुर्दे को जिंदा करने की जरूरत को समझा, वहां पर यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा किया। लेकिन तमाम आयात जो मैंने आपके सामने रखी है, खूबसूरत बात यह है कि मेरा और आपका खुदावंद का दिल भी तरस से क्या होता था, भर जाता था। आपका दिल भी तरस से भर जाना चाहिए। जो आपके पास खुदा ने आपको दिया है, सबसे बड़ा आपका टेस्ट आपको पता है कब होता है? आपको पता है सबसे बड़ा टेस्ट आपका कब होता है? आए दूसरा ग्रंथियों 8वां बाब 8वीं आयत पे जरा आए। दूसरा ग्रंथियों 8वां बाब 8वीं आयत क्या लिखा है? पौलुस कहता है, मैं हुक्म के तौर पर नहीं कहता, बल्कि इसलिए कि औरों की सरगर्मी से तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई आजमाओ। इसका मतलब क्या है? कहता है कि पौलुस कहता है, मकदूनिया की कलीसिया को मैंने तुम्हारे सामने रखा है, उनकी सरगर्मी की तरफ देखो। जब वो गरीबी की हालत में थे, सख्ती की हालत में थे, उन्होंने फिर भी यरूशलेम के लोगों और कलीसिया की जरूरत को समझते हुए उनका दिल तरस से भर गया और उन्होंने दिया। कहते हैं, मैं उनकी सरगर्मी को तुम्हारे सामने एग्जाम्पल रखता हुआ अब तुम्हारी मोहब्बत को भी आजमाना चाहता हूं। तो भाइयों, आपकी मोहब्बत का जो सबसे बड़ा टेस्ट या आजमाइश है, वो उस वक्त होती है जब आपके पास सिर्फ अपनी ही जरूरत के लिए हो, लेकिन आप उस वक्त में भी कहें कि मेरी जरूरत की खैर है, जो मेरे साथ है इसका भी कुछ ना कुछ इसमें से हो जाए।
یہ ہے دل. اور یہی وہ سب سے مشکل لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو صرف میرے ہی لیے ہے, لیکن ہم کسی دوسرے کی فکر اس وقت میں اگر نہیں کرتے. پولس کیا کہتا ہے کہ میں دوسروں کی سرگرمی سے تمہاری محبت کو کیا کروں جی, آزماؤں. تمہاری محبت, اور خالی محبت کو نہیں, محبت کی سچائی کو بھی آزماؤں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ محبت کا اظہار اور آپ کی محبت کتنی سچی ہے, اس کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ آپ کی قربانی سے, کہ آپ کس حد تک قربانی کرنا سیکھتے ہیں, کس حد تک دے دینا سیکھتے ہیں. مسیح نے اپنا آپ ہمارے واسطے قربان کر دیا. آؤ ہم بھی مسیح کی محبت میں ایک دوسرے کے لیے دیکھیں کہ ہم کس کس جگہ پر کیسے کیسے قربانی کر سکتے ہیں. یہ پریکٹیکل تھوڑی سی امپلیکیشن ہے. آئیں اب ہم اپنے ٹیکسٹ کی طرف بڑھتے ہیں, جب ایک بنیاد ہمارے سامنے بن گئی ٹیکسٹ کی طرف. اب آ جائے 2 کرنتھیوں 9 باب. اب آپ کے سامنے بنیاد ہے. اس بنیاد کے اوپر مقدس پولس جب 9واں باب لکھ رہے ہیں تو اب ہمارے لیے سمجھنا آسان. جو خدمت مقدسوں کے واسطے کی جاتی ہے اس کی بابت مجھے تم کو لکھنا فضول ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنتھیس کی کلیسیا کے اندر بہت سارے مسائل تھے. پہلے کرنتھیوں سے لے کر کے اس کے اندر مسائل بتاتا ہے, لیکن سخاوت کے معاملے میں مقدس پولس کہتا ہے کہ تمہیں لکھنا فضول ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم آلریڈی اس کام کے اندر بڑی سرگرمی کے ساتھ حصہ لیتے ہو. تو مقدس پولس جس کام میں ان کی تعریف والی بات ہے, ان کی ہلکی سی تعریف بھی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کلیسیاؤں کے دل اپنے دوسرے ایماندار بھائیوں کے لیے زندہ تھے. اور وہ کیوں زندہ تھے؟ کیونکہ پولس نے جو 2 کرنتھیوں کے 8ویں باب کے 8ویں اور 9ویں آیت کے اندر کرائسٹ کو بطور اگزامپل جو رکھ دیا, کہتا ہے کہ مسیح نے تمہاری خاطر دیا ہے, اور کہتا ہے کہ کیونکہ تم نے اپنے آپ کو مقدونیہ کی کلیسیا والوں نے بھی سپرد کیا ہے, تم لوگوں نے بھی سپورٹ کیا ہے, اس لیے تم خدا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے بھی کیا کرتے ہو, محبت ہے. تو کہتا ہے اس کے بارے میں تمہیں لکھنا جو ہے وہ کیا ہے, فضول ہے, کیونکہ میں تمہارا شوق جانتا ہوں. پولس کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تمہارے شوق کا, تمہارے ڈیزائر کا, تمہاری چاہتوں کا, تمہارے دل کا, جس کے سبب سے مقدونیہ کے لوگوں کے آگے تم پر فخر کرتا ہوں. کہتا ہے کہ اس معاملے کے اندر, کرسچن گیونگ کے اندر, میں مقدونیہ کے لوگوں کے آگے میں نے بڑی فخر سے کہا تھا کہ کرنتھیس کی کلیسیا اس کام کے اندر بڑی سرگرمی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی, کیونکہ میں ان کے دل کو جانتا ہوں کہ ایمانداروں کی واسطے اور مقدسوں کے واسطے جو خدمت ہے اس کے اندر وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے. اب یہاں پر ہمیں ایک لیڈر کی کوالٹی کا بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک لیڈر ہوتے ہوئے اس کو پتا تھا کہ اس کی کلیسیا کی ویکنیسز کیا کیا تھی اور اس کی کلیسیا کی سٹرینتھس کیا تھی. تو سخاوت کے معاملے میں کرنتھیس کی کلیسیا کی جو ایک خوبی تھی, مقدس پولس اس خوبی سے واقف تھا اور اس کی کیا کرتا ہے, تعریف کرتا ہے. اور کیا کہتا ہے, میں نے فخر کیا کس کے آگے, مقدونیہ کی کلیسیا کے آگے. اور کیا فخر کیا کہ اخیا کے لوگ تو پچھلے سال سے ہی تیار ہیں اور تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو, کہتا ہے اخیا, کرنتھیس جو تھا وہ اخیا کے اندر تھا, کہتا ہے کرنتھیس کے لوگ جو تھے وہ تو پہلے سے ہی کیا ہے جی, تیار ہے, پچھلے سال کی تیار ہے. اب میں تھوڑا سا یہاں پر کچھ پریکٹیکل بات ہماری کلیسیا کے کانٹیکسٹ میں کرنا چاہتا ہوں. ایک بھائی جب ایک دوسرے شہر سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آیا, ہم لوگوں نے اس وقت میں اپنی تیاری کی اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم اس چیز کو جاری رکھیں گے, جو ہماری ایک منتھلی کمٹمنٹ, ہم نے ایک چھوٹی رقم ٹھہرائی اور اس کو ہم جمع کریں گے تاکہ کل کو ایونجلزم کے اس میں کوئی بھی اگر مسیح کے اوپر ایمان لے کر کے آتا ہے تو ہم اس کی پہلے سے ہی تیار ہوں دیکھ بھال کرنے کے لیے. اب آپ اپنے دلوں کے اوپر غور کریں. ہر کوئی کٹی مارن دے چکرا چلتا ہے اپنی منتھلی کمٹمنٹس کے اوپر, ہر کوئی اپنے دل کے اوپر سوچے. اور ہماری منتھلی کمٹمنٹس جو کہ ہم نے دوسرے ایماندار بھائیوں کے لیے ایک اپنے دلوں کے اندر ٹھہرایا ہے, اس کے اندر ہم کتنے کے وفادار ہیں. ہر کوئی سوچے, ہر کوئی اپنی زندگی کے اوپر غور, ہر کوئی اپنے دل کو جانتا ہے. ذرا غور کریں, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پچھلے سال سے
तैयार थे, वो पहले से तैयार थे मुकद्दसों की मदद करने के लिए। लेकिन हमारे दिलों का कंपैशन, हमारे दिलों का वो तरस कहां पर है आज? आप जानते हैं इस कलीसिया के अंदर, इस चर्च के अंदर ना ही हमने कभी पैसे के लिए काम किया, ना ही हम करते हैं। आपने देखा होगा कितने सरमन आप लोगों ने सुने हैं जो कि खड़े होकर के चंदे के ऊपर आपको सुनाए गए हो। कितने साल हो गए? 7.5 साल के करीब हो गए इस कलीसिया को बने हुए, और कितने सरमन्स आपने सुने। लेकिन जब खुदा का कलाम बोलता है तो ये इसलिए नहीं है, बतौर बिलीवर्स हमें ऑटोमेटिकली हमारी जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए। यहां पर खड़े होकर के हर दफा मैंने बहुत सारे लोगों के अंदर देखा है, हम एक पेंटिकॉस्टल चर्च के अंदर जाते थे, 6 महीने तक वो पैसे के ऊपर ही सिर्फ कलाम सुनाया उन्होंने, सिर्फ पैसे के ऊपर। क्योंकि हमें समझने की जरूरत है, और बीइंग बिलीवर्स आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिकग्नाइज करने की जरूरत है। मेरा काम सिर्फ यहां से जो मेरे सामने टेक्स्ट में आएगा फेथफुली आप लोगों को बताना है, बस इतनी सी मेरी जिम्मेदारी है, एक्सपाउंड करना उस चीज को और आपके सामने रख देना। ये है खुदा का कलाम। और खुदा के फजल के वसीला से जहां पर मैं एक बात खड़ा होकर के ये कह सकता हूं, खुदा ने इस कलीसिया को हमेशा ही संभाला है, और हमने ईमान की आंखों से खुदा के काम को देखा है, खुदा की बरकत को, खुदा की बख्शिश को हमने देखा है, और खुदा के फजल से हमने वो काम किए हुए जो कि आम हालतों के अंदर बहुत सारी कलीसियाएं नहीं करती। लेकिन हमने ये क्यों किए? अपनी नमूद के लिए नहीं, खुदा के जलाल के लिए। क्योंकि हम जानते हैं जब हम कहते हैं कि हमने अपने आप को खुदा के ताबे और सपुर्द कर दिया, तो उसके अंदर हम कोशिश भी करते हैं कि जो कुछ भी हो सब खुदा के जलाल के लिए हो। तो कुरिन्थिस की कलीसिया पहले से तैयार थी। आप लोग अपने दिल की हालतों की तरफ देखें कि आपका दिल उस तरस से भर जाता है कि नहीं, कंपैशन से भर जाता है कि नहीं। मैंने मसीह यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी को आपके सामने नमूना रखा, मैंने खुदा के निजात के काम के अंदर अपना आप दे देने के नमूना को सबसे पहले रखा, यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी को आपके सामने बतौर नमूना रखा, मैंने यीशु मसीह की टीचिंग्स को आपके सामने बतौर नमूना रखा, और मैंने रसूलों की टीचिंग्स को आपके सामने बतौर नमूना रखा, और उसके आगे मैंने आपके सामने ये रखा, बस जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता ये उसके लिए गुनाह है। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारा दिल क्रिश्चियन गिविंग के अंदर कहां पे है। तीसरी आयत, लेकिन मैंने भाइयों को इसलिए भेजा कि हम जो फख्र इस बारे में तुम पर करते हैं वो बेअसल ना ठहरे, बल्कि तुम मेरे कहने के मुआफिक तैयार हो। अब पौलुस यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा है किन भाइयों को उसने भेजा। ठीक है, पिछले खत के अंदर तीतस को उसने भेजा, ठीक है, और कहता है मैंने इसलिए भेजा था, कहता है मुझे ऑलरेडी मालूम है तुम्हारे दिल का और तुम्हारे दिल की हालत का, लेकिन फिर भी मैंने भाइयों को इसलिए भेजा ताकि क्या हो जी, ताकि क्या हो, तुम लोग मजीद तैयार हो जाओ, और जो मैं फख्र करता हूं वो बेअसल ना हो। मुझे पता है मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैंने भाइयों को बतौर रिमाइंडर तुम्हारे दरमियान में क्या किया है, भेजा है। चौथी आयत, ऐसा ना हो, कहता मैंने इसलिए भी भेजा है कि ऐसा ना हो कि अगर दुनिया के लोग मेरे साथ आए और तुमको तैयार ना पाए तो हम उस भरोसे के सबब से शर्मिंदा हो। मतलब हमें नजर आता है कि मकदुनिया की कलीसिया जो कि एक बड़ा हदिया इकट्ठा कर रही है, तो पौलुस मकदुनिया के लोगों जिनके सामने फख्र करता है कि कुरिन्थिस की कलीसिया भी इस काम में हिस्सा लेगी, तो पौलुस कहता है जब मैं अपने साथ उन भाइयों को लेकर के आऊं और आगे से तुम लोग तैयार ही ना हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। कहते लेकिन पौलुस उनको कहता है कि मैं तुम्हारी क्रिश्चियन गिविंग से भी वाकिफ हूँ कि तुम पहले से ही तैयार थे, तो कहता है तुम मजीद उसके अंदर क्या रहो जी, तैयार रहो। क्रिश्चियन गिविंग के अंदर भाइयों तैयारी का होना, आपके दिल का होना, आपकी सोच का होना बहुत जरूरी है। और इस गर्ज से नहीं होना चाहिए कि आदमियों के सामने आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बहुत मरतबा कई लोग, फर्ज करें मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है, बंदे की कर देने ए जी चर्च दे विच मैं पखे लवा छड़े ने जी,
ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਰਪੈਟ ਪਵਾ ਛੜਿਆ ਜੀ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਵਾਲ ਕਲੌਕ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਛੜੇ ਜੀ, اور جی میں کتاباں لی کبٹ بنوا چھڑی ہے. پھر بعد میں لوگوں کو کیا ہوتا ہے ہن میرا نام بار تختی تے لکھا جائے. اور بہت سارے چرچز کے اندر وحید بھائی کے گاؤں میں ہم چرچ کے اندر گئے, وہ ایک اتنی بڑا بورڈ اور تختی ہر بندے کا نام لکھا ہوا ہے اس میں, پورے پنڈ کا ہی تقریباً نام لکھ چھڑے انہوں نے. نوے چک کے آپ کو بات بتا رہا, ہمارے گاؤں چلے جائیں ایسے ہی ہے. لاہور کیا کہہ سکتے, چرچ آف پاکستان کا ایک چرچ ہے کینٹ کے اندر, وہاں جائیں اتنی بڑی تختی لگی ہوئی ہے. پنڈی کے اندر میں گیا سینٹ پالس چرچ کے اندر, وہاں پر ایک میڈیکل کلینک چھوٹی سی بنائی, اس کے اوپر تختیاں لگی ہوئی ہیں. تو بہت مرتبہ تختیوں کے اوپر نام کے لیے, کیونکہ لوگوں کی سوچ انسان کی طرف سے ملنے والی واہ واہی اور ریوارڈ کی طرف ہوتی ہے, انسانوں کی طرف سے ملنے والی واہ واہی اور ریوارڈ کی طرف ہوتی ہے. آگے کیا لکھا ہے, اس لیے میں نے بھائیوں سے یہ درخواست کرنا ضرور سمجھا کہ وہ پہلے سے تمہارے پاس جا کر تمہاری مودا بخشش کو پیشتر سے تیار کر رکھے, تاکہ وہ بخشش کی طرح تیار رہے, نہ کہ زبردستی کے طور پر. کہتا ہے مودا کا لفظ کا مطلب ہے وعدہ کی ہوئی, جو تم نے اپنے دل کے اندر ٹھہرائی تھی. اب جہاں پر تھوڑا سا اردو ٹرانسلیشن کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہے, جہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے بخشش اور لفظ آیا ہے زبردستی کے طور پر, لیکن انگلش بائبل مزید اچھی ٹرانسلیشن کے ساتھ وضاحت کرتی ہے, اور اوریجنل گریک کے اندر. تو یہ آیت ہے 5ویں آیت, تو میں 9ویں باب کی 5ویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا. So I thought it necessary to urge the brethren that they would go on ahead to you and arrange beforehand your previously promised bountiful gift, so that the same would be ready as a bountiful gift and not affected by covetousness. یہاں پر لفظ لکھا ہے زبردستی کے طور پر, یہ بڑا ہلکا سا لفظ ہے. وہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے covetousness, تو وہ بتانا چاہتا ہے. اور باؤنٹیفل, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باؤنٹیفل کا مطلب کیا ہے. باؤنٹیفل لفظ جو ہے گریک, اس کا جو یونانی لفظ تھا وہ تھا یولوجی. کیا لفظ تھا جی؟ اور یولوجی کا حقیقی جو مطلب تھا وہ تھا بلیسنگ. بلیسنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت, برکتیں دینا. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ جب ایک سخی ایماندار ایمان کے ساتھ دیتا ہے تو وہ پہلی چیز خدا کے اوپر یقین کر کے دیتا ہے, اور اس خواہش کے ساتھ دیتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے آگے مزید لوگوں کو کیا ملے؟ برکت ملے, اور اس دینے کے وسیلہ سے جو میری زندگی کے اندر برکت ہے وہ خدا کی طرف سے آئے گی. تو باؤنٹیفل گفٹ کا مطلب یہ ہے, کہتا ہے جو تم نے اپنے دلوں کے اندر ٹھہرایا ہے وہ تم اس دل اور سوچ کے ساتھ دو کہ اس کا اجر اور اس کی برکت خدا کی طرف سے ہے, اور تم یہ اس لیے دے رہے ہو تاکہ یہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے, کہ یہ بخشش کے طور پر لفظ آئے. تو وہاں پر جو لفظ آیا ہے اوریجنل گریک کے اندر جولوجی, اور انگریزی کے اندر باؤنٹیفل گفٹ آیا ہے. تو ہمیں سمجھ نہیں, تو ٹرانسلیشن کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. اور زبردستی کے طور پر جو لفظ آیا ہے وہ لفظ آیا ہے کویچسنس. کویچسنس کا مطلب ہوتا ہے لالچی. لالچی, اور وہ جہاں پر جو گریک کے اندر جو ورڈ استعمال ہوا ہے کہ تم جب دو تو ایک مسیحی ایماندار کے طور پر دو جس کا بھروسہ اور توکل خدا کے اوپر ہو. تم غیر ایماندارانہ رویے کے ساتھ نہ دو. زبردستی کے طور پر جو جہاں پر لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب تم دو تو بطور ایماندار دو جو کہ بخشش کی امید خدا سے رکھے, نہ کہ غیر ایماندار شخص کے طور پر جو کہ لوگوں کے سامنے واہ واہی چاہتا ہے. تو غیر ایماندار شخص کے طور پر دینے کے لیے زبور 10 باب اس کی 3 آیت نکالیں, کیونکہ غیر ایماندار بھی اپنا کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں نا, تو اس کے اوپر بائبل ہمارے سامنے کچھ آیات ہوتا ہے. زبور 10 اس کی 3 آیت. کیا لکھا جی؟ کیونکہ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے اور لالچی خداوند کو ترک کرتا بلکہ اس کی اہانت کرتا ہے. پولس کہتا ہے کہ جب تم دو تو شریروں کی طرح نہیں دینا جو کہ اپنی
नफसानी ख्वाहिश पर फ़ख्र करता है। और जी मैं क्रॉस रेफरेंस के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि जब शरीर लोग कुछ करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो अपने नफसानी ख्वाहिश पर फ़ख्र करते हैं और वो खुदावंद को भी तर्क कर देते हैं कि जो कुछ मेरे पास है वो खुदावंद का दिया हुआ नहीं है बल्कि वो मेरा है, और ये देखो मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ जी, दे रहा हूँ। समझ रहे हैं? वाइस 5वां बाब 10 आयत, वाइस 5वां बाब 10 आयत, 5वां बाब 10वीं आयत लिखा है, जर दोस्त रुपया से आसूदा ना होगा और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से सेर ना होगा, ये बुतलान है। गैर ईमानदार लोगों का दिल और सोच पैसे की मोहब्बत के अंदर होता है। तो खुदावंद का बंदा कहता है कि पैसे से मोहब्बत रखता है वो उस पैसे की वजह से आसूदा ना होगा और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से सेर ना होगा, क्योंकि ये आपके अंदर और लालच पे लालच बढ़ाता चला जाएगा। तो जब पौलुस कहता है कि तुम्हारा रवैया जो है वो ये नहीं होना चाहिए, और अक्सर लोगों का दिल और सोच ये भी होती है कि मैं खुदा को दे रहा हूँ तो खुदा इसको डबल ट्रिपल करके मुझे देगा, ना, ये रवैया नहीं है आपका। रवैया कैसा? अब आप मसीह के दिल की तरफ देखें। मसीह ने दिया और मसीह ने दिया, मसीह ने दिया और सिर्फ मसीह ने दिया। कैसी खूबसूरत बात है। मसीह की तरफ देखें तो बाउंटीफुल हमने देखा। और एक बात याद रखिए भाई और बहनों कि आपका अजर जो है वो हकीकतन खुदावंद के पास है। 6ठी आयत में क्या लिखा है? लेकिन बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। लेकिन वो कैसे काटेगा? अगली आयत में कहता है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। आपके क्रिश्चियन गिविंग के अंदर आपके दिल में खुशी का फैक्टर होना, तरस का फैक्टर होना, मोहब्बत का फैक्टर होना, रहम दिली का फैक्टर होना भाइयों बहुत ज्यादा जरूरी है। और खुदा क्या कहता है? जो जितना बोएगा वो उतना ही काटेगा। लेकिन बात क्या है? जो कुछ तुमने अपने दिल में ठहराया है वो दे देने से दरेग ना करो। और अगली बात, लाचारी के साथ नहीं, मजबूरी के साथ नहीं, क्योंकि खुदा किस शख्स को अजीज रखता है? खुशी से। अगर आप खुदा के लिए देंगे तो मैं आपको ये बात, इधर मेरी तरफ देखिए, आपको ये लगेगा कि ये शायद प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वाली बात है। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वाली बात है, ये बाइबल की बात है। बाइबल में अगर लिखा है कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है, तो अगर आप तरस खाएंगे और अपने मसीही दूसरे बहन भाइयों की मदद के बारे में सोचेंगे तो खुदा के नज़दीक आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। आदमी आपको रिवॉर्ड नहीं दे सकता, आपका रिवॉर्ड खुदा के हाथ में। और आपकी उम्मीद खुदा से होनी चाहिए, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को क्या रखता है? अजीज रखता है। और क्या लिखा है? और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद है। खुदा अपना फजल कसरत के साथ आपके ऊपर कर सकता है। और मैं एक और बात बताऊं, एक ईमानदार शख्स होता है, उसके दिल के अंदर से खुदा, वो चीज जो खुदा की जगह लेने की कोशिश करती है उसकी मोहब्बत ही खत्म हो जाती है, फिर चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो। पैसे को भी इंसान इस तौर से देखता है कि ये भी खुदा की तरफ से आए। मैं खुदा की चंद बरकत आपके सामने रखना चाहूंगा कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है और खुदा अपने फजल को कसरत के साथ करता है। तो आए मेरी और आपकी तसल्ली के लिए इमसाल 10 बाब उसकी 27वीं और 28वीं, इमसाल 10वां बाब उसकी 27वीं और 28वीं। इमसाल 10 बाब उसकी 27वीं और 28वीं मैं पढ़ता हूं। खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है, लेकिन शरीरों की जिंदगी कोताह करती जाएगी। सादिकों की उम्मीद खुशी लाएगी, लेकिन शरीरों की तवक्को खाक में मिल जाएगी। सादिक की उम्मीद जो है वो खुद खुदावंद है, और जिसके पास खुदावंद है उसके पास हकीकी खुशी है, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में कामिल शादमानी है। मलाकी 3 बाब 10 आयत, मलाकी 3 बाब 10 आयत, मलाकी 3 बाब 10 आयत लिखा है,
पूरी दह यकी ज़ख़ीरा खाना मिलाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, जहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। तो भाइयों और बहनों, रिवॉर्ड खुदा के पास है और खुदा के नज़दीक किया गया काम, खुदा की मोहब्बत में किया गया काम बेहासिल ला हासिल नहीं होता। और खुदा अपने ठहराए हुए वक्त पर अपने फजल के मुताबिक जिस तरह से भी उसने फजल करना है, खुदा उसका रिवॉर्ड उस शख्स को देता है। खुदा का खादम रैंडी एल्कॉन कहता है, God's money has a higher purpose than my affluence। कहता है खुदा का जो पैसा है जो उसने मुझे दिया है वो मेरे ज़ाती रुझान से ज़्यादा बड़ा मकसद है। खुदा का जो पैसा खुदा ने मुझे दिया है कि मैं अपने रुझान के मुताबिक उसको इस्तेमाल करूं, लेकिन खुदा ने जो पैसा मुझे दिया है वो खुदा ने एक बड़े मकसद के साथ मुझे दिया है। गिविंग अफर्म्स क्राइस्ट लॉर्डशिप। जब हम देते हैं तो ये इस बात का इजहार और यकीन दहानी होती है कि हम यीशु मसीह को आका मान करके उसके कादर मुतलक इख्तियार के अंदर जिंदगी गुजारे। इट डिथ्रोन्स मी एंड एक्सॉल्ट्स हिम। ये मुझे मेरी जिंदगी के अंदर अपने ही बनाए हुए तख्त पर से नीचे उतारता है और खुदा को जलाल देता है जब हम खुदा के पैसे को खुदा के लिए देते हैं। इट शिफ्ट्स माय वेस्टेड इंटरेस्ट फ्रॉम अर्थ टू हेवन। ये मेरी सोच को जमीन के अंदर जो मेरा दिल लग जाता है उससे हटा करके अब्दियत की तरफ, जन्नत की तरफ लगा देता है जब मैं अपने पैसे को अपना खुदा नहीं समझता। फ्रॉम सेल्फ टू गॉड, मेरी जाती तरफ से मेरी नजरें हटाता है और खुदा की तरफ मेरी नजरें लगाता है। गिविंग ब्रेक्स मी फ्री फ्रॉम ग्रेविटेशनल होल्ड ऑफ मनी एंड पोजेशन। कहता है कि जब पैसा जो मेरे पास होता है जब मैं उसको देता हूं तो ये पैसा जो कि मुझे अपनी तरफ खींचता है और मेरी जमीन के ऊपर जो मेरे असासे हैं उनकी तरफ खींचता है, तो जब मैं देता हूं तो ये जो खींचने वाली सलाहियत और कुव्वत है पैसे की, पैसा जो मुझे अपनी तरफ खींचता है वो खत्म होती चली जाती है। गिविंग शिफ्ट्स मी टू अ न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज हेवन। जब मैं देता हूं तो एक नई चीज जो मुझे अपनी तरफ खींचती है और वो है अब्दियत, कि मैं असल रिवॉर्ड मेरा खुदा के पास अब्दी जिंदगी के अंदर है। खुदा की खादमा एमी कारमाइकल कहती है, यू कैन गिव विदाउट लविंग बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। कहता है कि आप मोहब्बत किए बगैर आप दे सकते हैं, लेकिन आप मोहब्बत जो है वो दिए बगैर कभी नहीं कर सकते। आप दे सकते हैं मोहब्बत किए बगैर, लेकिन आप मोहब्बत दिए बगैर कभी दिखा और कर नहीं सकते। खुदा की मोहब्बत में हमने देखा कि खुदा ने अपना आप दे दिया। खुदा का खादिम हडसन टेलर कहता है, द लेस आई स्पेंट ऑन माई सेल्फ एंड द मोर आई गेव टू अदर्स द फुलर ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स डिड माई सोल बिकम। कहता है जितना कम मैंने अपनी जात के ऊपर खर्च किया और मैंने कोशिश की कि मैं ज्यादा से ज्यादा दूसरों को दूं, उस देने के वजह से मेरा दिल बरकतों और खुशी के साथ भरा रहता है। उसके अंदर लालच नहीं था। खुदा का खादिम जॉन पाइपर कहता है, द पर्सन हु थिंक्स द मनी ही मेक्स इज मेंट मेनली टू इंक्रीज हिज कंफर्ट ऑन द अर्थ इज अ फूल, जीसस सेज। Wise people know that all their money belongs to God and should be used to show that God and not money is their treasure. Their treasure, their comfort, their joy and their security. कहता है वो शख्स जो ये समझता है कि उसका पैसा जो है वो इस जमीन के ऊपर उसकी खुशी को बढ़ाता है, वो शख्स बेवकूफ है। अक्लमंद या हिकमत वाला शख्स वो है कि जो कुछ भी उसका है वो खुदा का है, जो इस बात को समझता है कि जो कुछ भी उसका है वो खुदा का है और खुदा ही उसका खजाना है, खुदा ही उसका सुकून है, खुदा ही उसकी खुशी है और खुदा ही उसकी सिक्योरिटी है। वो शख्स एक हिकमत वाला शख्स है। इन तमाम तर बातों की रोशनी में
میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اپنے دل کو دیکھیں کہ گیونگ کے اندر آپ کا دل کس جگہ کے اوپر ہے. کیا آپ کا دل ترس کے ساتھ بھرتا ہے یا نہیں بھرتا؟ کیا آپ مسیح کے نمونہ اور پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں؟ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آئیے ہم دعا کریں.